Hello, ninth standard. Let's continue with our civics first lesson and eighth lesson from your textbook onwards. For this lesson, I had already uploaded with 4 videos, so this will be my 5th video related to this lesson. Okay? Fine. Let's continue. I have to go on with page number 61. That is residuary powers. Now what is residuary powers? Let us see what it is. The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuaries power. वो सब्जेक्ट, वो कुछ टॉपिक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही मेंशन नहीं किए गए. दैट इज़ इट्स नॉट इवन मैंशनड इन यूनियन लिस्ट नॉर इट इज़ मैंशनड इन स्टेट लिस्ट. तो वो जो सब्जेक्ट हैं दैट इज़ कंसिडरिंग एज रेसिडुअरी पावर्स. मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर आर नोन एज रेसिडुअरीज पावर्स. सो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें पावर की कुछ ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है. सो इन दैट केस this residuary power is used. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. So residuary subjects में जो भी टॉपिक है उनको ऑफिशियल वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, नॉट विद स्टेट गवर्नमेंट. ओके. The financial distribution of the resources is done between union government and state government. So finance भी, that is money is also distributed among central government and state government according to its requirement and all. Excise and custom, export import, income tax, all these major taxes are decided by central government. So what is decided by central government? That is excise and custom. Excise and custom is one type of duty which one have to pay if we have to do import and export. Okay. Then income tax related also, whatever decision making is there, that decision making is in central government's hand. While sale tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having meager financial resources, are decided by state government. So what is decided by state government? That is sales tax, revenue tax, that is income related income tax. Okay. Then entertainment tax, educational tax, all these taxes are decision power is with state government. Then unified arrangement during crisis. क्राइसिस के वक्त अचानक से अगर कहीं पर कुछ हो, से लाइक सपोज recently Amphan storm, very severe storm in Orissa and West Bengal just occurred, right? So काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर, काफ़ी लोगों के घर ब्रेक हो गए, टूट गए, राइट? तो वो सब जो भी था उस वक्त दैट इज़ कॉल्ड क्राइसिस. तो उस वक्त एक एमरजेंसी सिचुएशन बनती है कि हमें तुरंत वो स्टेट्स को संभालने के लिए आइदर डोनेशंस करने पड़ते हैं या गवर्नमेंट को इमीडिएट एमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है. सो दैट एमरजेंसीज आर इंक्लूडेड इन यूनिफाइड अरेंजमेंट. दैट इज़ यूनाइटेडली ऑल स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर. There are three provisions for emergencies in Constitution of India. National emergency can be declared at the time of war, external attack and armed rebellion. So अगर तो कहीं पर वॉर है या फिर कुछ एक्सटर्नली, दैट इज़ बाहरी, आउट ऑफ कंट्री किसी ने कंट्री पर अटैक किया है, या फिर हथियारों के रिलेटेड कुछ भी हो, सो एट दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर विद नेशनल एमरजेंसी. नेक्स्ट, due to law and order breakdown, the state cannot function according to its constitution. So law and order breakdown, so the constitutional emergency is declared.
सी अगर बाय चांस अगर state government is not able to work according to laws and orders, at that time also central government can declare emergency over there. Okay, say like suppose all of the sudden if CM resigned from the post, तो अगर CM रिज़ाइन करेगा तो तुरंत बाद अगर CM अगर अपॉइंट नहीं हुए, वो CM को अपॉइंट करने में अगर हम थोड़ा टाइम लेंगे तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी रुक जाएंगी. तो ऐसे समय में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टेक सर्टेन डिसीजंस ऑन देयर बेसिस. देन ड्यू टू द इंक्रीज इन prices there is monetary value erosion at that financial emergency is declared. कई प्रोडक्ट्स में प्राइस सडनली इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मनी प्रॉब्लम फेस करती है पब्लिक. उस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है. लाइक ड्यू टू दिस कोरोना वायरस फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ फेस्ड बाय एवरीवन, राइट. सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइक आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट एंड ऑल, many projects are introduced by government so that people can go on with a certain amount, certain money with a very less rate of interest. The central government has been given more power to deal with these emergencies. At the time of emergency, India is almost turned into the unitary system. So India completely united हो जाता है ऐसे emergency में अगर कुछ भी declare होता हो तो. Okay, then parliamentary system. Now what is parliamentary system? See, एक easy topic है ये. Like आपका भी स्कूल है, स्कूल में टीचर्स हैं, तो टीचर्स अगर मीटिंग्स वगैरह हैं तो दे यूज टू सिट इन स्टाफ रूम एंड गो ऑन विद मीटिंग्स आइदर विद कोऑर्डिनेटर्स और विद प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट एंड ऑल, राइट. तो स्टाफ रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी टीचर्स मिलकर बैठते हैं एंड इफ़ दे वांट टू टेक सर्टेन डिसीजन रिगार्डिंग एजुकेशन और रिगार्डिंग स्कूल सिस्टम, दे डिस्कस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन मीटिंग एंड देन फाइनली दे कम इन वन कंक्लूजन विद मेजॉरिटी. ओके, मेजॉरिटी के साथ एक कंक्लूजन पर आते हैं तो कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल स्टाफ रूम. लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन इन पार्लियामेंट. India has a parliamentary system of governance. In the parliamentary system, the parliament is the supreme authority representing people. The legislature at the union is the parliament. The parliament is bicameral means it has two houses, upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha and lower house is called Lok Sabha. Though the government is carried on in the name of president at the union and the governor at the states, actual administration is carried out by the councils of ministers headed by prime minister at the union and the chief minister at the states. You know क्या होता है कि पार्लियामेंटरी सिस्टम एक मतलब ऑफिशियल वर्क करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं. ओके, सी स्टाफ रूम में किसी को टीच नहीं किया जा सकता. स्टाफ रूम में सभी अलग अलग क्लासेस के क्लास टीचर्स आकर मिलेंगे और मिलकर फिर कोई डिसीजन लेंगे. एट द सेम वे पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होता है कि सभी मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन करते हैं एंड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे लाया जाए दैट ऑल्सो दे गो ऑन डिस्कसिंग. पार्लियामेंट इज़ हैविंग टू हाउसेज, वन इज़ राज्य सभा एंड वन इज़ लोक सभा, दैट इज़ अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ओके, ज़्यादातर कहा लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय गवर्नर. सी प्रेसिडेंट और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर आता है, उसी तरह से गवर्नर और उसके बाद में CM चीफ मिनिस्टर आता है. अंडरस्टूड. सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बाद फर्दर इट इज़ मैंशनड ओवर हेयर कि एक्चुअल जो ऑफिशियल वर्क है ना, इट इज़ नॉट ओनली डन बाय आइदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, it is mostly done by cabinet of ministers which are appointed by chief ministers, or for central government those ministers are appointed by prime minister. Understood. प्राइम मिनिस्टर उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर अपनी एक टीम बनाते हैं. अंडरस्टूड. ओके, अपनी एक टीम बनाते हैं और उस टीम में फिर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं अपनी टीम बनाते हैं. उसके बाद
और वो जो टीम है उनकी टीम्स अलग अलग एरियाज़ में स्प्रेड हो जाती है। लाइक अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट देयर विल बी वन हेडेड प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हर एक स्टेट का अपना अपना एक एक फाइनेंस मिनिस्टर भी होगा जो अपनी स्टेट के लिमिटेड काम करेगा और वो फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको सारी डिटेल देगा। सो समवेयर these things are connected with one another, that is regarding cabinet ministers of central government and cabinet ministers of chief ministers. Understood? Then the councils of ministers is responsible to the legislature that comprises representatives of people. So पूरा ऑफिशियल वर्क जो है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ही उनके जवाबदार होते हैं। The President elect 12 people who are experts and experienced from various fields for राज्य सभा। राज्य सभा में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, बट राज्य सभा में जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो वो प्रेसिडेंट चूज़ करता है, वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा के मेंबर्स बनाता है। अंडरस्टूड? Okay, then further they are talking about Rajya Sabha is the permanent house in which 1/3 member retires every 2 years. So राज्य सभा के जो members हैं वो every 2 years retired होते हैं। It is permanent house and the same number of members are elected, और election भी होता है। Select suppose every 2 years अगर 10 members of राज्य सभा retired होते हैं तो उसके सामने 10 न्यू मेंबर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर राज्य सभा बिकॉज राज्य सभा इज़ परमानेंट हाउस। दस ईच मेंबर हैज़ 6 years ऑफ टेन्योर इन राज्यसभा। राज्यसभा में हर मेंबर 6 years तक रह सकता है। ओके, द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर्ड टू द लोकसभा विच इज़ स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसीजिव। राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा से काफ़ी हाई पावर है, उसकी सुपीरियर पावर है एंड डिसीजन मेकिंग भी राज्यसभा के पास ज़्यादा है रादर देन लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड। राज्यसभा कभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? ओके, देन फर्दर इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। जुडिशियरी दैट इज़ जजिंग करना। तो जज हमेशा ऐसे होने चाहिए जो ये ना सोचे कि मेरे सामने कोई रिच पीपल खड़े हैं, मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सामने पॉलिटिशियन हैं, मेरे सामने कोई मिनिस्टर्स हैं। दे शुड बी वेरी लॉयल टू देयर वर्क, लॉयल एंड ऑनेस्ट टू देयर वर्क। ओके, जो गलत है मतलब गलत है। सो इम्पार्शियल, किसी के साथ बिना पार्शलिटी किए हुए या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए जुडिशियरी को अपना काम करना चाहिए। अंडरस्टूड? देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। देयर इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड अंडर इट्स jurisdiction are the district courts at district levels and the taluka level there are local and special courts. So ये पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, एक ट्रायंगल जैसा बनता है यहाँ पर। लाइक सबसे टॉप में अगर देखें वी हैव 3 parts। सबसे टॉप में देखें तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन टॉप। देन हर एक स्टेट्स के लिए देखें, अगर यहाँ पर स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट्स के लिए देखें तो वी हैव 1 मेन कोर्ट इन 1 स्टेट, दैट इज़ हाई कोर्ट। अंडरस्टूड? और हाई कोर्ट ज़्यादातर स्टेट की कैपिटल में ही होगा। अब स्टेट्स के नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट के नीचे तालुकाज़ आते हैं, तो तालुकाज़ में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं। अंडरस्टूड? सो किसी को भी प्रॉब्लम हो कैन गो विद तालुका कोर्ट। तालुका कोर्ट का डिसीजन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर वो डिसीजन नहीं प्रॉपर ले पाते तो दे कैन अपील इन हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट का डिसीजन सबको मानना होगा।
लेकिन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, सो देयर इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट से दिया हुआ डेटा भी स्टडी करेगा और आपकी बात भी सुनेगा, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट विल गिव यू फाइनल डिसीजन विच everyone have to follow compulsory. So ये जो court system है, this court system should be very impartial and independently working for everyone. Understood? The judgment of Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nations. That is, Supreme Court जो भी judgment करते हैं, जो भी supervision करते हैं, वो lower सभी courts को मानने ही होंगे. In case of conflict between union and the state government, matters relating to constitution and interpretation of status, the final decision is vested by Supreme Court. कभी अगर ऐसा हो कि कभी कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिया जाता है. इफ़ कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्क हो रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन ही सुनाते हैं. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट एक तरह से प्रोटेक्टर और गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का. अंडरस्टूड? I'll just stop here only. Just this one page I have completed in this video. Okay, I will just go slowly so that you can understand these topics. No doubt if we go on making more videos, it's not an issue of making more videos, right? So this is 5th video. Please go through this video properly and understand all these topics which I gone through today in this video. Take care everyone and continue your studies regularly, please. Bye bye.